Good morning, dear students. I am Ravi Bhushan, Director and HOD Physics of Quantum JEE Academy. So today we are discussing some questions over parallelogram law of vector addition. Law of vector additions मैंने आपको बताया, polygon law of vector addition, वहाँ parallelogram law of vector addition आया. Similarly triangle law of vector addition पे हम वर्क कर सकते हैं. वहाँ जो है थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स. ये मैंने आपको बताया था, पॉलीगन लॉ में ही बता दिया था. अब इस पे बेस्ड एक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. और उससे पहले मैं जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन बता देता हूँ. वेक्टर एडिशन अभी डिस्कस किया था मैंने. तो इफ वी कम टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो जैसे हमने एक पार्ट किया था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1 वेक्टर. तो फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. दैट मीन्स ये मैंने आपको बताया था, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R1. सेकंड, लॉ ऑफ एडिशन इज एसोसिएटिव. फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव. जैसे हमने थ्री वेक्टर्स का केस लिया था, लाइक वी हैव R1 प्लस R2 प्लस R3. इट मे बी रिटन एज R1 प्लस R2 प्लस R3. एंड ऑल्सो लॉ ऑफ एडिशन इज distributive, right? Like we can write, suppose two vectors we have, one is R1 and the other one is R2, two vectors. और इसको किसी हमने एक न्यूमरल वैल्यू p से स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो इट मे बी रिटन एज p R1 वेक्टर प्लस P R2 vector. Okay, now we come to one question. Two vectors having magnitude R1 is equal to, suppose, 10 units and R2 is equal to 5 units. Have theta is equal to 60 degree. That is what angle between them. Between the vectors, we have to find first part, the resultant maximum, a resultant minimum. C, the magnitude of R1 plus R2, and fourth one is the magnitude of R1 minus R2. These results we have to get. Okay, then see, one vector we have magnitude of the first vector is of 10 units
and the magnitude of second vector is of 5 units. So we come to the first part. The value of the resultant maximum. So R max is always R1 plus R2, that is simply 10 plus 5, it will be of 15 units. It is the answer. Second part, we have to get the value of R min. R min is R1 minus R2, that is 10 minus 5, that is equal to what? 5 units. Now the third part, we have to get the magnitude of R1 plus R2. So say this vector is R1 and this vector is R2. What is the angle between them? Theta is equal to 60 degree. Okay, so from parallelogram law of vector addition, we have the resultant magnitude R1 square plus R2 square plus 2 R1 R2 cos theta. So resultant we get under root 10 square 5 square cos of 60 degree, this much of unit. Okay, now we have to get the magnitude of R1 minus R2. So say this vector is R1 and this vector was R2. Negative of R2, the direction must be reversed without changing the magnitude of the vector. So this vector is what? Minus R2. So say if this angle is 60 degree, then this angle is 120 degree. So again using parallelogram law of vector addition, we have the mod of R1 minus R2 is equal to under root 10 square 5 square plus 2 10 into 5. We will have to take cos of 120 degree. ओके, और यहाँ से आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं. cos 120 डिग्रीज it is cos 90 degree plus 30 degree. Cos 90 plus theta is minus sin theta. Minus sin 30 degree, that is equal to minus 1/2. ये ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़ जो है मैं आपको आगे मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट में ट्रिगोनोमेट्री का जो है एंगल्स में ये पार्ट हम एक बार डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये हमने इक्वेशन ट्राई किया. Now see, first point, see if number of vectors n cyclic order combine together to form a loop. कई सारे वेक्टर्स हैं और साइक्लिक ऑर्डर में मीन्स चाहे सारे वेक्टर्स को हम क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें, combine together to form a loop, then resultant of vectors is always, इस केस में
वेक्टर्स का रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज 0, है ना. लाइक वी हैव 3 वेक्टर्स, one is R1, the other one is R2 and the third one is R3. यहाँ क्लॉकवाइज हमने लिया और इन तीनों ने कंबाइन करके एक लूप बना दिया. इन दिस केस रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स इज ऑलवेज 0. इसको सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है. अगर लूप बन रहा है तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा. अब हमने इस तरीके से लिया, like one vector is this, it is R1, this vector is suppose R2, this vector is R3, this vector is R4, this vector is R5 and lastly this vector is R6. तो see यहाँ हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, तो the vectors combine together to form a loop. Then the resultant of the vectors R1 plus R2 plus R3 and so on up to R6 that is equal to 0. तो अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स लूप बना रहे हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर्स का हमेशा क्या होगा, 0 होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, if 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स मीन्स जो एक ही प्लेन में हो, in different directions combine to form a 0 वेक्टर. मीन्स इन तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स को अगर आप कंबाइन करेंगे साइक्लिक ऑर्डर में तो ये एक लूप बनाएगा. ठीक है. तो इफ 3 कोप्लेनर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस कंबाइन टू फॉर्म अ 0 वेक्टर, then from it is Lemmy's theorem, we have R1 by sin of theta 1 that is equal to R2 by sin theta 2 and it is also equal to R3 by sin of theta 3 and this ratio remains constant. ये रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो दिस थ्योरम इज कॉल्ड लेमीज थ्योरम. ओके. तो जैसे देखें, we have these 3 vectors in different directions. One vector is R1, the other vector is R2 and the third vector is R3. R1 का सामने this angle is theta 1, R2 के सामने this angle is theta 2 and this angle we have what, theta 3. okay. तो resultant of the vectors we have 0. R1 plus R2 plus R3 is equal to 0. और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दिस वेक्टर्स मस्ट बी कोप्लेनर. पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट डायरेक्शंस में होनी चाहिए. तो अगर हम इसको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करें, R1 हेड ऑफ R1 सी दिस वेक्टर वी हैव R1. तो हेड ऑफ R1 शुड बी कनेक्टेड विद द टेल ऑफ R2. तो इसका टेल को हमने यहाँ शिफ्ट किया एंड देन हेड ऑफ R2 शुड बी कनेक्टेड विद द टेल ऑफ R3. अब R3 का टेल को हम यहाँ ले जाते हैं. अब देखें, इट इज R3 वेक्टर. नाउ 3 वेक्टर्स combine together to form a what,
लूप, तो इफ़ नंबर ऑफ वेक्टर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लूप साइक्लिक ऑर्डर में क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, देन द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स इज ऑलवेज 0. तो सी दिस थ्योरम इज कॉल्ड लेमीज थ्योरम. तो फिजिक्स में इस थ्योरम को जो है इक्विलिब्रियम का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है, या फिजिक्स में कहीं भी जो है जहाँ 3 कोप्लेनर फोर्सेस दिख रहे हों या वेक्टर्स दिख रहे हों और रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स इज 0, तो वी मे इजीली यूज व्हाट, लेमीज थ्योरम. तो एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं दैट इज बेस्ड ऑन लेमीज थ्योरम. ओके, one basic question we take that is based on Lemmy's theorem. Suppose it is a pendulum of mass m, mass is given suppose 10 kg, okay, and हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया हमने, F इज इक्वल टू 200 न्यूटन. तो वी हैव टू गेट टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, T का वैल्यू फाइंड करना है, और ये जो स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस एंगल वी हैव टू गेट. तो क्वेश्चन इज फाइंड टेंशन T produced in the string and angle theta with the वर्टिकल के साथ जो है ये जो स्ट्रिंग एंगल फॉर्म करना है, दैट वी हैव टू गेट. तो लॉज ऑफ मोशन में इसको हम इक्विलिब्रियम से सॉल्व करेंगे ही, है ना. तो यहाँ मैं एक पॉइंट बता दूँ, सी व्हाट इज टेंशन T, सी इट इज द इंटरनल फोर्स produced in the string under the given force. कोई भी एक फोर्स, जैसे यहाँ पे mg लग रहा है, यहाँ f लग रहा है, तो under the given force, internal force produced within the string, that is called tension in the string under the given force, and is always directed away from the mass. देखिए इसको मास से दूर हमने शो किया, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मास. लॉज ऑफ मोशन में टेंशन और इंटरनल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो अब देखें इस पे कौन कौन से पॉसिबल फोर्सेस लग रहे हैं, दैट वी चेक. सी इट इज़ द मास m, मास इज ऑफ 10 kg. तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज Fg इज इक्वल टू mg, दैट इज 10 इंटू 10 हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया, दैट इज ऑफ 100 न्यूटन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज ऑफ 200 न्यूटन. एंड सी one force is produced in the string directed away from the mass, this is tension T. अब देखें यहाँ जो एंगल था, दिस एंगल वाज थीटा. तो अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो व्हाट, थीटा. तो यहाँ देखिए ये जो पार्टिकल है या मास है, दिस वन इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द 3 कोप्लेनर फोर्सेस इन डिफरेंट डायरेक्शन. वन इज ऑफ 200 न्यूटन, अदर इज 100 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, टेंशन. तो इस क्वेश्चन को जो है हम वेक्टर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं. तो व्हाट अबाउट दिस कंप्लीट एंगल, अगर इस पूरे एंगल को आप देखें, दिस एंगल, तो दिस एंगल इज थीटा प्लस 90, इट इज 90 डिग्री प्लस थीटा. ओके, व्हाट अबाउट दिस एंगल,
this angle is 90 degree. And what about this angle? If this angle is theta, this angle is 180, तो this angle is 180 degree minus theta. तो तीनों एंगल्स हमारे पास आ गया. Now we may use Lemmy's theorem. कौन से पॉइंट पे यूज़ करेंगे? We will have to use Lemmy's theorem over this point P. Okay. Now using Lemmy's theorem at point P. P पॉइंट पे हमने यूज़ किया. तो देखें T टेंशन है. टेंशन का अपोजिट एंगल क्या है? 90 साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू एफ इज ऑफ 200 न्यूटन. इसके अगेंस्ट एंगल क्या है? 180 माइनस थीटा. ओके. एंड द थर्ड वन इज एम जी, दैट इज ऑफ 100 न्यूटन डिवाइडेड बाई 100 का अगेंस्ट कौन सा ये एंगल है? 90 प्लस थीटा, तो इट इज साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस theta. Okay, so what we get? T sin 90 is 1, that is equal to 200. Sin 180 minus theta is sin theta is equal to 100, and sin 90 plus theta is cos theta. ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूँगा. ठीक है, ये वैल्यूज़ किस तरीके से हम चेंज करते हैं. ओके. एंड दिस रेशियो रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट. ये बताया था मैंने. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एंड साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज कॉस थीटा. ओके. तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया. तो सी, इन दोनों को सॉल्व करते हैं. तो यूजिंग दिस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, cos theta, that we have what? Tan theta. Tan theta is equal to 200 by 100, that is equal to 2. ओके. और जब tan theta का वैल्यू आ गया तो फिर टेंशन का वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो t का वैल्यू वी हैव व्हाट? 200 बाई साइन थीटा. तो tan थीटा का जो वैल्यू 2 आया है, इससे पहले हम साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सी, tan theta we have 2. Tan theta is perpendicular by base. Okay. So what we get? Hypotenuse is equal to under root p square plus b square. तो what is p here? p की जगह we have 2 and b की जगह we have 1. तो 2 square plus 1 square, that is 4 plus 1, that means root 5. h का वैल्यू आ गया. Then we have sin theta is perpendicular by hypotenuse. तो perpendicular की जगह we have 2 और hypotenuse हमने कितना कैलकुलेट किया है? root 5. Then the value of t we have what? 200 by sin theta. तो 200 divided by 2 by root 5, that is 100 root 5, this much of Newton. तो टेंशन की जगह हमारे पास आ गया 100 root 5 न्यूटन, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा, tan थीटा 2 है, इससे हम थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2. ओके. क्वेश्चंस कर रहे हैं बेस्ड ऑन लेमीज थ्योरम. तो लेमीज थ्योरम पे जो है मैंने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था. ठीक है, और भी क्वेश्चंस जो है उस पर हम वर्क करते हैं. ओके. तो वी हैव अ क्वेश्चन. टेंशंस के बारे में जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डायनेमिक्स में. अभी जो है मैं सिर्फ टेंशंस का डायरेक्शन जो है शो कर रहा हूँगा डायग्राम के अंदर. बस वो टेंशन का डायरेक्शन को लेके चलना है. ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा जो है सोचने का ज़रूरत नहीं है. सपोज
we have an arrangement. This angle is 30 degree and this one is 60 degree. These are strings and a mass is connected with these strings. The mass is of 10 kg. Okay, you have to get tension produced in the string. Suppose in this string tension is T1 and in this string tension is T2. मैंने टेंशन के बारे में जो है अभी बताया था. टेंशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मास एंड इट इज़ इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस्ड विद इन द स्ट्रिंग. तो यहाँ देखिए इट इज़ अ पॉइंट जहाँ तीन फोर्सेस लग रहे हैं. सपोज दिस पॉइंट इज़ P. तो आप इस पॉइंट पे लेमीज थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, है ना. तो दिस पॉइंट इज सपोज P. हियर वी हैव फोर्स. देखिए 10 kg का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, 10 × 10 दैट इज ऑफ 100 न्यूटन, राइट. तो डाउनवर्ड फोर्स वी हैव 100 न्यूटन. हियर वी हैव टेंशन T2 and this side we have tension T1. Okay, now see if this angle is 30, this angle is 60 degree, then this angle will be what, 90 degree. तो ये हमारा एंगल क्या है यहाँ पे, it is 90 degree. अब देखिए if this angle is 30 then this angle is what, 60 degree. तो ये अगर हमारा 60 डिग्री है, the remaining angle will be 180 minus 60. तो this angle is 180 degree minus 60 degree, that is equal to 120 degree. Similarly, what about this angle? बिल्कुल बेसिक तरीके से देखना है. ये सब 9/10 में किया हुआ है, आप एंगल इजीली फाइंड कर सकते हो. अगर ये वाला ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर दिस ट्राइंगल, तो दिस एंगल इज 60 देन दिस एंगल इज व्हाट 30 बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो ये अगर 30 है तो 180 से 30 आप हटाओ तो ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस 30 डिग्री. दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री. ओके, अब देखिए अंडर द थ्री फोर्सेस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. क्वेश्चन ये है, इफ द गिवन सिस्टम इज इन equilibrium then find tensions T1 and T2. ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, हमें टेंशंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है. ओके, तो यूजिंग लेमीज थ्योरम एट पॉइंट P, इट इज सॉल्यूशन पार्ट. यूजिंग Lemmy's theorem at point P. पॉइंट P पे Lemmy's theorem हमने यूज़ किया. तो से T1 डिवाइडेड बाई इट इज़ 150. T1 का जस्ट अपोजिट क्या है, 150. तो साइन ऑफ 150 डिग्री. अभी बताया था मैंने Lemmy's theorem पीछे, तो Lemmy's theorem को एक बार जो है आप देख लेंगे. दैट इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई दिस एंगल इज व्हाट, T2 का जस्ट अपोजिट 120. तो T2 बाई साइन ऑफ 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू वी हैव 100 डिवाइडेड बाई. ओके, एंड दिस एंगल 100 का अपोजिट इज 90. तो साइन ऑफ 90 डिग्री भी है. ओके, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. देखिए अगर आप इन दोनों को यूज़ करते हैं तो यूजिंग दीज टू, you get what, tension T1. T1 is equal to, we have what, sin 90 is 1, 100 sin of 150 degree. Sin 150, 100 sin 90 प्लस 60. 180 माइनस 30 भी यूज़ किया था, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं. ठीक है,
इट इज़ 180 माइनस 30, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे 180 माइनस 60 लेके करूँगा। तो साइन 90 प्लस थीटा मैंने क्या करवाया था, इट वाज कॉस थीटा प्रीवियस, अभी बताया था मैंने पीछे क्वेश्चन में। तो इट इज़ 100 कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू पता है आप सबको, इट इज़ 100 इंटू 1/2, दैट इज़ ऑफ व्हाट 50 न्यूटन। तो टेंशन वी हैव व्हाट 50 न्यूटन। ओके, नाउ वी हैव टू गेट T2। तो T2 के लिए आप इन दोनों को यूज़ करोगे, यूज these two। तो T2 we have what 100 sin 120। 120 कैसे आया था, 180 माइनस 60, दैट इज 100 साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। मैंने आपको साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू बताया था, इट इज़ ओनली साइन थीटा। तो व्हाट वी गेट 100 साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 वी हैव व्हाट √3/2, तो दैट इज 100, the result is what 50√3 Newton, it is the result। तो finally we have T1 is equal to C, T1 we have 50 Newton and T2 is 50√3 Newton। तो ये T1 और T2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लॉज ऑफ मोशन में हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ जो है नेट फोर्स x का 0 करना है और नेट फोर्स y का करना है। अभी जो है वेक्टर्स में भी जो है मैं वो पार्ट डिस्कस कर लूँगा कि व्हेन रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स इज 0, दैट मीन्स हर कोऑर्डिनेट के अलोंग नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा 0। तो इन क्वेश्चंस को जो है हम रिजोल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी डिस्कस कर ही लूँगा मैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन लेमीज थ्योरम। वन मोर क्वेश्चन वी हैव। Suppose this one is a given system, suppose this system has been given। This mass has value 10 kg, this mass is suppose m, this angle is 30 degree, this angle is 60, suppose here tension is T1, here tension is T2 and here tension is T3। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन इज फाइंड टेंशन T1, T2 and T3 when the system is in equilibrium। ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है और इस इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ टेंशंस T1, T2 एंड T3। तो यहाँ देखिए कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ हम लेमीज थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक स्टैटिक सिस्टम है, इस सिस्टम पे जो है किसी भी पॉइंट पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ ये है, दैट इज़ P1, T2, T1 और इधर फोर्स क्या होगा 10 kg का, इट इज़ ऑफ 100 न्यूटन। और दूसरा पॉइंट P2 है, M है, वी हैव फोर्स mg, दैट इज इक्वल टू व्हाट 10m। ओके, तो इन दो पॉइंट्स पे तीन तीन फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ T1, T2 एंड 100 न्यूटन, हियर वी हैव T2, T3 एंड mg। तो एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m हियर, m का भी वैल्यू फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड m। ठीक है, यहाँ 4 रिजल्ट्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स पे भी मैं यूज़ लेमीज थ्योरम। ओके, तो वी कम टू द सॉल्यूशन using Lemmy's theorem at point
P1 पॉइंट पे हमने लेमीज थ्योरम यूज़ किया। ओके, तो P1 पॉइंट पे यूज़ करने से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जा रहा है, देखिए दिस पॉइंट इज P1, 1 force here is T1, it is T2 and this side force we have 100 न्यूटन। अब जैसे एंगल्स का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था, अकॉर्डिंगली आप यूज़ करें। तो सी दिस वन इज़ परपेंडिकुलर, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, ये हमारा 30 है, तो दिस एंगल इज़ 30, तो 30 प्लस 90, दिस एंगल इज़ व्हाट 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और ये अगर 30 डिग्री आ रहा है तो दिस एंगल विल बी 180 माइनस 30, इट इज़ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, तो यूजिंग लेमीज थ्योरम, तो वी हैव से T1 डिवाइडेड बाई T1 का जस्ट अपोजिट क्या है 90 साइन ऑफ 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू T2 का जस्ट अपोजिट भी है 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 डिग्री। देन T3 देन वी हैव T1 हो गया, T2 हो गया 100 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 100 का जस्ट अपोजिट क्या है 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, तो देखिए T1 is equal to sin 90 is 1, T1 is equal to 100 divided by sin 180 minus theta, that is sin theta, तो sin of 30 degree, sin 30 is 1 by 2, तो we get the result 200 न्यूटन। तो T1 का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, now we come to T2, that is 100 sin 90 plus 30 degree divided by what we have sin 180 degree minus 30 degree, that is sin 90 plus theta is cos theta, it is 100 cos 30 degree divided by sin 180 minus theta is sin theta, sin of 30 degree. Now cos 30 is root 3 by 2, so it is 100 into root 3 by 2 divided by 100 into root 3 by 2, that is sin 30 is 1 by 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो वी गेट व्हाट रिजल्ट 100 रूट 3 न्यूटन। तो P1 पे अगर हम लेमीज थ्योरम यूज़ कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग T1 इज इक्वल टू 200 न्यूटन एंड T2 इज इक्वल टू रूट 3 को 1.73 लिख सकते हैं, दैट इज़ 173 न्यूटन। तो राउंड ऑफ करके हमने लिखा इट इज़ ऑफ 173 न्यूटन। तो देखिए हमने T1 और T2 ये दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया यहाँ से। अब हम लेमीज थ्योरम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। हमने लेमीज थ्योरम कहाँ यूज़ किया है P1 पे। नाउ सिमिलरली वी यूज़ लेमीज थ्योरम एट पॉइंट P2। तो नाउ यूजिंग लेमीज थ्योरम एट पॉइंट P2। अब हमने P2 पे यूज़ किया लेमीज थ्योरम। तो देखिए T1 और T2 तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो दिस पॉइंट इज़ P2। यहाँ कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं, वन इज़ T2, हियर वी हैव टेंशन T3 and here we have mass m, so gravitational force it is 10m. Okay, then say we find the angles. So this angle we have what 90 degree,
if this angle is 60, see, if this angle is 60 degree, then this angle is also what, 60. तो it is 60 plus 90. तो यहाँ हमने यूज़ किया 60 plus 90 degree. तो this angle is 90 plus 60 degree. Then what about this angle? टोटल एंगल का सम 360 होता है, तो 90 यहाँ है हमारे पास, इट इज़ 150. तो 140 डिग्री. देन दिस एंगल इज़ व्हाट, 120 डिग्री. तो इट इज़ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री. एंगल्स का कॉन्सेप्ट जो है मैं एक बार जो है डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, तो परेशानी नहीं होगा आपको. तो नाउ वी में यूज़ लेम्यूस थ्योरम. पहले हमने कहाँ यूज़ किया था, P1 पे. अब हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, P2 पे. तो P2 पे अगर हम लेम्यूस थ्योरम यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जा रहा है T2. T2 का जस्ट अपोजिट भी है 90 प्लस 60 डिग्री. ओके, इज इक्वल टू T3 divided by sin 90 degree, and that is equal to 10m. It is 10m divided by just opposite क्या है, 120, that is 90 degree plus 30 डिग्री. ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं. Then see what we have, T2 divided by sin 90 plus 60 is cos 60 degree, that is equal to T3 sin 90 is 1, that is equal to 10m divided by sin 90 plus 30 is cos 30 degree, where T2 हमने फाइंड किया था. T2 was what, 173 Newton. Now putting this value here, so it implies that T2 173 divided by cos 60, we have what, 1 by 2, that is equal to T3, and it is also equal to 10m cos 30 is रूट 3 by 2. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो इसको यूज़ करने के बाद वी आर गेटिंग T3 इज इक्वल टू 2 इंटू 173, that is what, 346 Newton. The value of T3 we get 346 Newton. Now we have to get the value of what, m, and also ये वाले रिजल्ट को आप इसके साथ कंपेयर करें तो 2 और 2 तो कैंसिल हो गया. तो वी हैव 10m इज इक्वल टू 173 रूट 3. इट इज़ रूट 3, 170 रूट 3. ओके, तो व्हाट वी गेट, m इज इक्वल टू 173 रूट 3 डिवाइडेड बाई 10, दिस मच ऑफ केसी. तो सारे रिजल्ट्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए. ओके, वन मोर क्वेश्चन वी हैव. ओवर द rough inclined surface, a 10 kg mass is static as shown. एक इंक्लाइन सरफेस पे 10 kg मास जो स्टैटिक है और वो शो किया हुआ है. ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स FR. फ्रिक्शनल फोर्स FR का वैल्यू फाइंड करना है, एंड नॉर्मल रिएक्शन N. मैं डायग्राम में जो है आपको ये ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ. सी,
it is an inclined surface inclination is given 30 degree and this is a mass of 10 kg. ओके, देखिए अगर ये आप इंक्लाइन सरफेस पे मास रखेंगे, ये तो लॉजिकल है, द मास विल टेंड टू मूव डाउन, ठीक है। तो यहाँ एक फोर्स फ्रिक्शन में जो है लॉज ऑफ मोशन में करवाऊँगा, तो जस्ट यहाँ पे मैंने दे दिया है, इट इज़ Fr, इट इज़ एनी फोर्स दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस फोर्स इज वी हैव N। और चूंकि 10 kg मास है तो नीचे एक फोर्स लग रहा होगा, दैट फोर्स इज व्हाट 10 into 10 दैट इज ऑफ 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन इज नोन, वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट Fr, और दूसरा किसका वैल्यू फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन का। तो अगर इसको आप देखें तो एट दिस पॉइंट वी हैव 3 फोर्सेस, इस वाले पॉइंट पे कितने फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस हैं, Fr, N एंड 100 एंड दिस आर कोप्लेनर। एंड ये अगर स्टैटिक है, द मास इज स्टैटिक, दैट मीन्स सारी फोर्सेस का सम क्या है, 0, नेट वेक्टर सम इज 0। तो हमें Fr का वैल्यू कैलकुलेट करना है और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इफ़ 3 कोप्लेनर फोर्सेस कंबाइन टुगेदर टू गिव 0 फोर्स देन वी मे यूज़ लेमीज थ्योरम। तो आप इस पर ईजिली लेमीज थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप कर लीजिएगा, मैं से फेंट दे दे रहा हूँ। तो यूजिंग लेमीज थ्योरम एट पॉइंट P पे हमने यूज़ किया, सी this one is frictional force, this force is 100 Newton and this one is what, normal reaction। एंगल्स अगर देखें तो this angle is 90 degree, okay। if this angle is theta then this angle is also what, theta, 30 degree। तो 30, see this angle is 30 plus 90, तो दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके। और ये 90 है, दिस वन इज 120, तो 210, दिस रिमेनिंग एंगल विल बी व्हाट 150, तो दिस एंगल इज 150 डिग्री। तो आप लेमीज थ्योरम कौन से पॉइंट पे यूज़ करेंगे, P पे, तो you'll get the value of, ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो गया सॉल्विंग, you get the value of Fr and the normal reaction। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।